Hello students, today we are going to start the next topic, subject-verb agreement. In your practice book, this is the fourth topic and let us do the worksheet number 1. Read the following. Amit, Bobby, Charu and Divya have formed a book reading club. Amit, an architect and avid reader, is the founder of the club. Every Saturday, all of these meet at his house and read for hours. Each member brings one book and circulates it among the others. None of them skips the special Saturday meet. Amit likes to read books by Vikram Seth, but neither Charu nor Divya has read any of his books yet. This Saturday, either Charu or the two boys are going to bring the Unequal Music by Vikram Seth. Amit, as well as his three friends, thinks that reading is a very rewarding habit. He says, "My three friends and I keep collecting different books. The majority of these books are by Indian authors." Now, note, a finite verb always agrees with its subject in number and person. कोई भी finite verb होती है. What is finite verb? First of all, you must know. There are two types of verbs, finite verbs and non-finite verbs. Finite verbs are the simple verb forms that you are doing since so many years. Okay. Finite verbs are the verbs which have different forms. First form होती है, second form, third form, and subject के person या फिर subject के number के according जो verb अपनी फॉर्म चेंज कर लेती है तो वो आपकी फाइनाइट वर्ब्स होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, गो आपकी फाइनाइट वर्ब है. ही के साथ लगाएंगे ही गोज, ओके, और दे के साथ लगाएंगे दे गो. ही इज गोइंग, दे वर गोइंग. तो गो अपनी फॉर्म चेंज कर रहा है. दिस इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब. तो कोई भी फाइनाइट वर्ब है वो हमेशा इसके सब्जेक्ट, वर्ब के पहले जो सब्जेक्ट लगा होता है उसका नंबर, कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, एक वचन है या बहुवचन है, ये चीज इस पे डिपेंड करती है. एंड पर्सन, कि वो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, इस पे डिपेंड करती है. रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो. एयर एंड वाटर आर नेसेसरी फॉर सर्वाइवल. टू सब्जेक्ट्स ज्वाइन हो रहे हैं एंड के साथ. मनु एंड आई वर होस्ट्स ऑफ द पार्टी. टू सब्जेक्ट्स मनु एंड आई और यहाँ पर एंड के साथ जुड़े हुए हैं. Manu is noun, I is pronoun and were is plural verb. जब कोई noun और pronoun and के साथ जुड़े हैं या कोई दो noun and के साथ जुड़े हैं, then they are followed by a plural verb. See the remember part. When the subject consists of two or more nouns or pronouns joined by and, a plural verb is used. As explained in the examples above. Plural verb use होती है जैसे examples में given है. However, if the noun or pronoun refer to the same person, अगर noun और pronoun, ये जो noun है ये pronoun है या दोनों noun है, if they refer to the same person or thing, a singular verb is used. अगर एक ही person या एक ही thing के लिए दोनों noun या pronouns use किए गए हैं, then they will be followed by a singular verb. अदरवाइज and से जुड़े होंगे तो plural verb लगेगी. अगर वो दोनों एक ही आइडिया कन्वे कर रहे हैं या एक ही पर्सन या एक ही चीज के लिए यूज हुए हैं तो सिंगुलर वर्ब लगती है. लेट अस सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल. ऑथर एंड पब्लिशर मिस्टर साहनी इज इन टाउन टू इनॉग्यूरेट अ बुक फेयर. यहाँ पर ऑथर एंड पब्लिशर गिवन है.
ऑथर एंड पब्लिशर और नेम गिवन है मिस्टर साहनी। एक ही पर्सन है, वो ऑथर भी है और वो पब्लिशर भी है। तो मिस्टर साहनी हमारे एक ही पर्सन है यहाँ पे, जो ऑथर और पब्लिशर दोनों हैं। इज इन टाउन, तो मिस्टर साहनी इज इन टाउन। ये जो ऑथर और पब्लिशर है मिस्टर साहनी, ही इज इन टाउन टू इनॉग्रेट द बुक फेयर। द टू नाउन्स ऑथर एंड पब्लिशर रिफर to one person, the same person. Next example, second one. See the second example. The author and the publisher were called for a meeting. यहाँ पर the author and the publisher, ऑथर भी है एक और पब्लिशर भी है, लेकिन उनके साथ the यहाँ भी लगाया और यहाँ भी. It means the two nouns refer to two different people. जब यहाँ हमारे डेफिनेट आर्टिकल लग गया, द लगा दिया, पब्लिशर के साथ भी ऑथर के साथ भी, तो ये हमारे टू डिफरेंट पर्सन्स बन गए हैं, तो इनके साथ प्लूरल वर्ब लगेगी. द ऑथर एंड द पब्लिशर वर कॉल्ड फॉर अ मीटिंग. नाउ कम टू वर्कशीट 2. रीड द फॉलोइंग. द कंफर्ट एंड लग्जरी प्रोवाइडेड बाय द मशीन्स हैज मेड पीपल लेजी. जो कंफर्ट और लग्जरी मशीनों ने प्रोवाइड किया है, उससे लोग लेजी हो गए हैं. तो कंफर्ट एंड लग्जरी टू नाउन्स है और दो नाउन्स हमारे एंड से जुड़े हैं, बट ये सिंगल आइडिया कन्वे कर रहे हैं. कंफर्ट और लग्जरी, ओके, कंफर्ट आराम और लग्जरी सुख सुविधा, दोनों एक ही आइडिया है, एंड से बेशक जुड़े हैं बट सिंगल आइडिया कन्वे कर रहे हैं. तो प्रोवाइडेड बाय द मशीन्स हैज सिंगुलर नाउन यूज किया गया है. हर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन हैज पेड ऑफ. हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन, कठिन परिश्रम और उसका समर्पण भाव, डेडिकेशन, तो ये दोनों चीजें एक ही जैसी क्वालिटीज हैं, एंड से जुड़ी हैं, बट फिर भी हैज लगा हुआ है, सिंगल आइडिया कन्वे हो रहा है. नेक्स्ट, गोइंग टू अ बीच एंड मेकिंग सैंड कैसल्स इज माई आइडिया ऑफ अ परफेक्ट हॉलीडे. बीच पर जाना और सैंड कैसल्स बनाना. अब बीच पर ही तो सैंड कैसल्स बनाते हैं, सिंगल आइडिया एंड से जोड़ा हुआ है, तो इज, बीच पर जाना और रेत के महल बनाना मेरे लिए परफेक्ट हॉलीडे का आइडिया है, इज. In the above examples, the two nouns either convey the same meaning as in sentence 1 and 2 or express one single idea as in sentence 3. Okay. Therefore, in such sentences, we use a singular verb. Now, the exercise, tick the correct options in the following sentences. Already ticked हैं, tick किए हुए हैं. Just आपको समझाने के लिए मैंने टिक कर रखे हैं. आई एम टेलिंग देम. सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सिंगल आइडिया है. सादा जीवन उच्च विचार, एक आइडिया है. सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग वॉज गांधीजीज फिलोसफी, सिंगल आइडिया है तो वॉज. इट इज सेड दैट ब्यूटी एंड ब्रेन डैश नॉट गो टुगेदर. ब्यूटी एंड ब्रेन, सुंदरता और बुद्धिमानी, डिफरेंट आइडियाज हैं, तो डू नॉट गो टुगेदर. It is said that beauty and brain do not go together. Next, Dev and Anuj, and से जुड़े हैं, two nouns हैं. Dev and Anuj are going to Goa this weekend. Next is the singer and actor Sonu dash awarded the trophy. अब the singer and actor, the सिर्फ एक जगह लगा है, singer and actor, और नेम भी गिवन है सोनू. ये सिंगल पर्सन सोनू के लिए, वो सिंगर भी है और एक्टर भी है, सोनू है, तो यहाँ आएगा वॉज अवॉर्डेड द ट्रॉफी. नेक्स्ट, द सिंगर एंड द एक्टर, यहाँ डेफिनेट आर्टिकल सिंगर के साथ भी और फिर एक्टर के साथ भी द, तो इट मीन्स टू पर्सन्स हैं. द सिंगर एंड द एक्टर वर wearing similar jackets. Next, the logic and reasoning of the theory dash given below. Logic and reasoning, logic and reasoning एक ही चीज है, ओके. तो logic and reasoning सिंगल आइडिया कन्वे कर रहा है. of the theory is given below. Next is milk and cereals. दूध और दालें अलग अलग हैं दोनों. Milk and cereals are the best breakfast for kids. Next, his honesty and integrity. His honesty and integrity are or is
अनक्वेश्चनेबल, इसमें क्या लगाएंगे? ऑनेस्टी, आपको मीनिंग पता है, ईमानदारी। इंटीग्रिटी का मीनिंग भी ऑनेस्टी और सिंसियरिटी होता है, सो दे कन्वे द सेम आइडिया। हिज ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी इज क्वेश्चनेबल। यहां पर आर बाय मिस्टेक करेक्ट हुआ है, इसको आप इज करेंगे, इज अनक्वेश्चनेबल। नेक्स्ट इज वॉचिंग टीवी एंड प्लेइंग वीडियो गेम्स डू नॉट और डज नॉट इंटरेस्ट मी। वॉचिंग टीवी एंड प्लेइंग वीडियो गेम्स सेम तो नहीं है ना, वॉचिंग टीवी और प्लेइंग वीडियो गेम्स डिफरेंट आइडियाज हैं, तो यहां पर डू नॉट प्लूरल वर्ब लगेगी, डू नॉट इंटरेस्ट मी। द लास्ट वन, यू एंड शी, यू एंड शी एंड के साथ जुड़े हैं टू, नाउन और प्रोनाउंस, ओके। यू एंड शी हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द एक्सटेम्पोर competition।